क्लियर हो गई थी बात? और कोई डाउट? एनीवन? शुष्नेम, कोई डाउट? नो सर। रिकी? यस रिकी, सर। कोई डाउट? रिकी तो दिखी नहीं रही, कहाँ गया? छत दिख रही खाली। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, रिया? नो सर। ओके देन, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, भी कौन आया है? दिव्या, वेलकम दिव्या। ठीक है, ठीक है। सो इन द yesterday's class what we have done till these chapters है ना, these chapters we have done. So what we have understood from these concepts, कौन कौन से concept पढ़े थे? So let me just recall them for you. So we have done the concepts like the forces behind the exogenic forces. So what were the exogenic forces were there? Take a denudation, the process of denudation, the way the rocks it broke down, ठीक है ना? And then we have talked about the weathering, and I told you there what is the difference between the weathering and the erosion. So in the weathering, it will be the flakes of the rock. It will be apart from the main rock, and it will be just fell down just beneath the rock. So this is the weathering. Clear? So there are various factors of the weathering also. Some chemical factors were there, biological factors were there. Okay, and physical factors were there, just like wind or rain, है ना? Chemicals factor, for example, acid rain. Biological factors, some plants is growing there, some fossil fuels, and buried because of that. So these things we have seen. Clear? So withering is it will be break the part of the soil, the part of the rock will be break, and it will fall apart at that place only. And in the section of the erosion, it will move, है ना, at a larger distance by some agents, है ना? It will be transported by some agents. So we have seen the agents like wind, air, water, rivers. So these agents we have seen, and then we have seen what is mass moment. So if it is falling apart, if the withering is happening at narrow scale, at a minuscule level, so this is the withering process. But if the things are happening at a very large scale, so that's known as the mass movement. And there we have seen even some ascending things, for example the creeping, flow, and the landslide. So landslide, it is the biggest one, and then the flow, and then the creep is it is moving at a very slow pace, creeping, you know, creeping and crawling. And then flow, it will move at some fast pace more than the creep, and then the landslide. ठीक है ना? ओके, दिव्या टर्न ऑन कैमरा। दिव्या, कैमरा क्यों बंद हो जाता है सबके? ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमने पढ़ ली थी। दिव्या, कोई डाउट है आपका? नो सर। ठीक, ठीक है ना? तो दीज और थिंग्स आर वी सीन। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर चुके थे ना, ओवरऑल कैसे बात किया था हमने कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्लाउड्स दे आर, ठीक है ना? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द अपर क्लाउड्स, हाउ दे रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, एंड हाउ द लोअर क्लाउड, है ना, दे रिफ्लेक्ट द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। धर्मित, वेलकम धर्मित, टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, सो these things we have seen, and the role of the atmosphere overall, है ना, कैसे काम करता था, percentage of the amount of the gases in the atmosphere, the function of the ozone or the water vapors, ठीक है ना, and troposphere and stratosphere. The good ozone is there in the stratosphere. Troposphere की जो ozone होगा will reflect back the terrestrial radiation, which is a long radiation, ठीक है ना? Thermosphere, exosphere, this is we have seen. So today we're going to talk about some more concepts, है ना? The concept regarding the insolation. So even in the yesterday's class I have talked about the insolation. What is the insolation? What is the full form of the insolation I have talked about? Dharmit, tell me, Dharmit, what was the full form of the insolation? I told you in the yesterday's class. Dharmit. सर, इज इट इनकमिंग सोलर रेडिएशन? Right. Incoming solar, इसका full form क्या था? Full form was incoming solar
रेडिएशन. सो ओवरऑल जो भी रेडिएशन आ रही है ऊपर से, दैट्स नोन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना. वी हैव सीन इन यस्टरडेज क्लास ओनली, बट विल हैव अ लुक अगेन in this class. Then the concept of the temperature. Now I'll give you the broader understanding of the temperature. Even I have given the broader understanding of the temperature in the section of then the moment we were discussing about the geomorphology. ठीक है ना. तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. चलो बात कर लेते पहले. And then the temperature, in influence of the temperature and the heat budget and albedo. So I'm just थोड़ा सा बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में. Some general understanding, है ना. What is the general understanding? The general understanding is that some entities are there. For example, temperature, pressure, है ना. ये दो चीज़ों के बारे में बात करें, temperature and pressure. क्लियर. So the temperature and pressure, मैंने क्या बताया था, as if this is earth, if this is the earth, land. So as we are moving beneath the earth, the temperature and the pressure will rise or fall. What I told you in the previous classes. As we are moving beneath It will increase. it will Temperature, pressure, and density all will increase. definitely, as we'll move inside the earth, the temperature will increase, pressure will increase, and if there's a density means how dense the particles are, how close the particles are. So these all three things will be increased. Clear. Now इसका opposite क्या होगा? As we'll move above the earth, है ना. As we'll move above the earth, the temperature will decrease, the pressure will decrease, and then the density जो होगी वो भी overall decrease होगी. This is the normal condition, this is the general condition. Clear. Now so हमको पता भी है टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा. नाउ जस्ट सी सम कॉन्सेप्ट. टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा? लुक, इफ द रेडिएशन इज कमिंग, है ना. अगर रेडिएशन यहाँ से आ रही है, इफ द रेडिएशन इज कमिंग, तो ये हीट आ रही है अर्थ की. दिस इज द इंसुलेशन, फॉर एग्जांपल इंसुलेशन. आई एम गिविंग यू जनरल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ना. उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस. इट विल बी लाइक अ केक वॉक. So insolation is coming. So obviously I told you that some radiation will reflect back. What name I have given the radiation which reflects back? What name I have given that? Albedo. तो हाँ वो तो ठीक है. Some name I have given. Terrestrial radiation I have given. Terrestrial radiation. So this is what? Terrestrial radiation. अच्छा, कल जब एल्बिडो के बारे में बात कर रहा था, so there in the ozone section I forgot to tell you about the Dobson unit. What is Dobson unit? Anyone? Dobson unit. Sona? Dobson unit nothing, just the measurement of the unit of the ozone. तो ओजोन को अगर मीजर करना ना कि ओजोन की थिकनेस कितनी है ना, हाउ मच थिक द ओजोन इज, सो दिस इज नोन एज द डॉप्सन यूनिट. ठीक है ना. तो ये ओवरऑल क्या होता है? मेजरमेंट यूनिट ऑफ ओजोन. ठीक है ना. और उसी तरह इफ आई से द क्यूबिट्स इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ क्यूबिट्स. दिस वाज a UPSC PYQ also. UPSC PYQ. Now qubit you can say Q means quantum bit. ठीक है. तो qubit का मतलब क्या हो गया? क्वांटम बिट. दिस मीन्स व्हाट? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटम. ठीक है ना. क्वांटम. अच्छा, जो बात करते हैं ना कि हाउ दैट इफ यू टॉक द ओजोन लेयर इज वेरी डेंस. ठीक है ना. या ओजोन लेयर पेनिट्रेट हो गई. द ओजोन लेयर मीन्स इफ द ओजोन लेयर इज वेरी डेंस, दिस मीन्स द हाउ क्लोजली पैक द पार्टिकल्स आर देयर, है ना. इफ अगर मैं बोलता कि ओजोन लेयर ना वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, पतली हो रही, काइंड ऑफ, इफ आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, सो दीज मीन्स यहाँ दिस वर्ड वी यूज ना कि ओजोन होल में छेद हो गया है. देयर इज अ पेनिट्रेशन इन द ओजोन होल. मोस्टली वी टॉक इन टर्म्स ऑफ अंटार्कटिका, द सदर्न पोल. सो वी इफ वी आर सेइंग सम होल इन द ओजोन होल, दिस मीन्स द पार्टिकल्स, द ओजोन, इट इज वेरी अपार्ट फ्रॉम इट इज द पार्टिकल्स आर स्पार्सली लोकेटेड, है ना. स्पार्सली लोकेटेड. ठीक है ना. ये बात करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? द इंसुलेशन इज कमिंग, और ये इंसुलेशन यहाँ से जा रही है. क्लियर. द इंसुलेशन इट इज रिफ्लेक्टिव बैक, एंड दिस इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, ऐसे बोलते हैं. लॉन्ग वेव रेडिएशन. ठीक है. मोस्टली इट इज अल्ट्रावायलेट. नहीं सॉरी, मोस्टली इट इज इंफ्रारेड. यहाँ से जो आती है दिस इज अल्ट्रावायलेट. ठीक है ना. अल्ट्रावायलेट. क्लियर हो गई ना. सो अब ये अगर इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हेयर, तो डेफिनेटली द टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा? ज़्यादा होगा. डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा. सो एज इट विल मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, द टेम्परेचर विल राइज और डिक्रीज. राइट और रॉन्ग?
अगर यहाँ का टेम्परेचर, डेफिनेटली यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, दिस रेडिएशन इज कमिंग, बट एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, है ना, तो ये रेडिएशन जो टेम्परेचर है विल मेल्ट डाउन. तो व्हेन द मोमेंट द टेम्परेचर विल मेल्ट डाउन, सो डेफिनेटली टेम्परेचर विल डिक्रीज. Clear okay concept? This is all science, this is all logic, this is all science. Clear? Now talking about the pressure, as we are moving away from the earth, what I told you, I told you the atmosphere is there, and it is very closely packed. Why it is there and why it is very closely packed? Because of the gravity. So basically what gravity is doing, and why don't the atmosphere just went away in a just a click of a second? So the reason is because the gravity is holding the molecules together, है ना, the gravity is holding the molecules together. So that is the foremost reason. ठीक है ना. So ये क्या हुआ, ये बंधा हुआ है, बट वी नो इट वेरी वेल कि एज वी आर मूविंग, अब भाई एटमॉस्फेयर है कहाँ तक, 100-150 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, है ना, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ वहाँ तक ऊपर. सो एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, the atmosphere will become thin. The atmosphere will become thin, and definitely if the atmosphere is thin, if atmosphere is very thin or is sparsely located, the molecules are sparsely located, so definitely the pressure will be very less, so hence the pressure will be less, and the density hence will be less too. density का मतलब क्या होता है, how closely the particles are located. अब ये पता चल गया सबको, लाइक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि how this happened, ये कैसे हुआ, टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, एंड डेंसिटी लो. और ये कैसे हुआ था, जब नीचे जा रहे थे तो टेम्परेचर वेरी हाई था, बिकॉज द एवरीथिंग इज इन द मोल्टेन स्टेट, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एंड द डेंसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोज्ड है. एवरीवन क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? एवरीवन क्लियर है? नोड यू हैड, एटलीस्ट नोड यू हैड. ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इंसुलेशन की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं. इंसुलेशन बात कर चुके हैं, है ना, विल मूव इन अ फास्ट वे. सो इंसुलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी जो अर्थ पे रिसीव हो रही है, ठीक है ना, अर्थ पे रिसीव हो रही है, ठीक है ना. नेक्स्ट, हीट विद इन द कोर मेंटल इज ट्रांसफर टू द सर्फेस वोल्केनिक. ठीक है, ओवरऑल क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो दो तरह की हीट है. कैसी हीट है, वन, अगर इफ दिस इज द अर्थ सरफेस, सो वन थिंग इज द इंसुलेशन, जो इंसुलेशन आ रही है, दिस इज वन हीट. एंड सेकंड हीट इज जो अर्थ के वोल्केनो से या इनसाइड द अर्थ इट इज वेरी हॉट ना, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज वेरी हॉट, सो डेफिनेटली इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ सरफेस पे पड़ेगा, है ना, देयर विल बी सम इफेक्ट इन द सरफेस, बट दैट इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ द इंसुलेशन, है ना, बिकॉज वो बहुत अंदर है. उसका इफेक्ट तभी पड़ता है जब वो व्हेन इट वेंट आउट इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन और काइंड ऑफ ए थिंग, ठीक है ना, उसी टाइम पे उसका इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना. ये बात क्या है यहाँ पे, तो अर्थ रिसीव सन रेडिएशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन. दिस इज यू नो, ये समझना है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड दिस इज नोन एज दी लॉन्ग वेव रेडिएशन. व्हाट आई मेंशन्ड हियर मींस दिस इज नोन एज दी, ये जो आ रही ना इंसुलेशन, अल्ट्रावायलेट, दिस इज शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, एंड विच इज रिफ्लेक्टिंग बैक, दिस इज नोन एज दी लॉन्ग वेव रेडिएशन. ठीक है, तो दिस इज द लॉन्ग वेव रेडिएशन, और वो वाला कौन सा है, दिस वन इज द शॉर्ट वेव. शॉर्ट वेव है, इंसुलेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन, दिस इज अल्ट्रावायलेट ऑल्सो, एंड हियर इट इज लॉन्ग वेव ऑल्सो. आई हैव मेंशन्ड हियर लॉन्ग वेव एंड इंफ्रारेड ऑल्सो. ये डायग्राम बना लेना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये डायग्राम बना लेना, अदरवाइज आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे. क्लियर होगी बात. तो इसको बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन है, मोस्टली द इंफ्रारेड रेडिएशन होता है ड्यूरिंग द नाइट, है ना, नाइट में ही निकलेगी, है ना, दिन में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, है ना, इट विल ओनली रेडिएट एट द नाइट. one more thing is there, one more term is there, diurnal temperature. Di means two, urinal temperature. So it is the difference between the highest and the lowest temperature in a day. Highest temperature कब होगा, highest temperature will be at near about 2, दोपहर के 2 PM near about that, ठीक है, that is the highest temperature. Lowest temperature will be in the morning or in the evening. Tell me, lowest temperature कब होगा डे का, in the morning or in the evening? Tell me, lowest temperature of a day. ऐसे मुझे मत देखो, मतलब मैं पूछ रहा हूँ. मॉर्निंग, हाँ ठीक है, मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में इसलिए नहीं होगा ना. फॉर एग्जाम्पल इवनिंग के अगर आप बोल दोगे 6-7 बजे,
सो उस टाइम तक क्या हो रहा होगा, जो 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 पूरे दिन में जो टेम्परेचर अब्जॉर्व किया हुआ है फ्रॉम द शॉर्ट वेव्स और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको रेडिएट कर रहा होगा ना, इवन दो एट दैट टाइम द अर्थ इज वेरी हॉट। इसलिए वो शाम को हम लोग क्या करते हैं, जब कभी मे बी यू हैव डन सो, कि रात को जब सोते टाइम क्या करते थे, कभी कभी हम लोग इन समर्स व्हाट वी डू, वी ट्राई टू स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द टेरेस, है ना, टू मेक इट हॉट, टू मेक इट कोल्ड, ठीक है ना। बट वी डोंट यूजली डू दीज थिंग एट द इवनिंग, वी डू एट नाइट नियर अबाउट 9 और 10, है ना, ऐसे करते थे हम लोग। एंड दिस इज ऑब्वियसली द ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज नॉट 30, दिस इज 23.5, 23.5, नो इट वेरी वेल, ठीक है। ऑब्वियसली ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर का कितना इफेक्ट पड़ेगा, यू नो इट। इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, सो विल सी इट। इट बेसिकली द टेम्परेचर इट इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, है ना। ज़्यादा वाटर वेपर इकट्ठा नहीं हो पाती, तो बेसिकली द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी, है ना, इसको इफेक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली evaporation it helps in the the temperature it helps in the evaporation and the condensation। evaporation होगा ना, the water will be evaporated, है ना, and that will form the overall the water cycle, है ना, the rain cycle। so और उसके बाद कंडेंसेशन। evaporation मतलब क्या हो गया कि वो ऊपर चला गया, कंडेंसेशन मतलब वहाँ जाके जम गया। एंड देन बेसिकली होता क्या है कि the water evaporates and it condenses in the sky, and there are also some dust particles, there are also some dust particles, ठीक है। so there are also some dust particles, so with these dust particles the water collided or mingled with each other, and after mingling when the threshold point reaches where it cannot hold the water more than that capacity, है ना, the tapped potential is untapped and the precipitation. I told you the word that we don't use the word rain there, है ना। For every subject we have some different terminologies. So basically ये करता है, it affects the relative humidity also. What is the meaning of humidity? Humidity means how much amount of the water is there in the air, so that's known as the humidity. So this and relative humidity हो गई, और overall this affects the formation of the cloud and the precipitation. When the humidity reaches 100% or near about 90% humidity, 100 तो कभी नहीं reach कर पाता, 90 to 95% if the humidity reaches, then the precipitation will happen. Next, factors influencing the temperature. So what are the factors that will influence the temperature, है ना। जो temperature कहाँ से आ रहा है, we got it ना, temperature कहाँ से आ रहा है, from the insolation, the temperature is coming from the insolation. So talking about it, how it will be affected, it will be affected from the latitude also, it will be affected from the latitudes, तो latitude से भी affected होगा। Now everyone is clear with the latitude and longitudes ना। if this is earth, so longitudes, ठीक है। longitude मतलब long क्या होता है, long, these are the longs, so these are the longitudes, and latitude means these are the latitude, ठीक है। और उसमें सबसे जो बीच में होता है ना, बीच वाला, दिस इज द इक्वेटर, द बिगेस्ट लॉन्जिट्यूड, एंड हेयर इट इज द प्राइम मेरिडियन, द बिगेस्ट लॉन्जिट्यूड। क्लियर हो गया। सो लैटिट्यूड द पोजिशन विल बी चेंज, है ना। देखो यहाँ पे जो इस लैटिट्यूड में होगा, इफ सम कंट्रीज एट दिस लैटिट्यूड, है ना, विल हैव मोर इंसुलेशन, तो टेम्परेचर विल बी मोर, है ना। दीज आर द ट्रॉपिकल एरिया definitely, है ना, and the temperature will be less in the temperate regions. So these are the things, ठीक है ना। next is the duration of the sunshine. Obviously if you talk about the northeastern state, for example take your state of Sikkim. So in the Sikkim also, okay, tell me, Sikkim comes in the tropical area or the subtropical area? Tropical state है कि subtropical state है, और temperate state है? Is there any difference between a subtropical or temperate? Tell me, चलो बताओ, Shushnem. Yes, sir. Sikkim, I think it's temperate. You think temperate? No, it is temperate, yes, sir. It is temperate or subtropical? Ricky? Sir? It is temperate or no idea? Ria? I guess it's temperate. ठीक है। देखो, the meaning of subtropical and temperate both are same ना, what I told you। देखो, the India is like that। देखो, if this is earth, this is equator, ठीक है, so India is here,
the half part of India, it is wait a minute, so नहीं थोड़ा गलत हो गया, this is इक्वेटर, ठीक है ना, एंड दिस इज द कैंसर, ये कैंसर हो गया. सो ये जो एरिया होगा, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, एंड वेयर इज इंडिया, इंडिया यहाँ पर है. सो इसका इंडिया का आधा पार्ट, द सदर्न पार्ट ऑफ इट, सदर्न इंडिया, ठीक है, दिस इज ट्रॉपिकल, इन द ट्रॉपिकल एरिया, तो दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया. ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा, इट इज, इसको बोलते हैं जो ऊपर का है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, और यू कैन ऑल्सो बोलते हैं एज द टेम्परेट, बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम. तो ऊपर का जो एरिया होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, या टेम्परेट हो जाएगा, और नीचे का ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है. तो इंडिया में दोनों आएगा ओवरऑल, सिक्किम उसी में ही आएगा, ठीक है, कश्मीर भी उसी में आएगा, सब उस पर आ जाएगा. क्लियर हो गया. सो दिस इज अबाउट इट. Next, so latitude, obviously the latitude will define the overall, the type, the amount of the insolation you are having. Clear. Next is the duration of the sunshine. जैसे मैंने बताया था सिक्किम और अरुणाचल. So in these northeastern states, what happen is the amount of the insolation, or for example the duration up to which the sun shines there, is less compared to the tropical area. ठीक है ना. सो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द डे लाइट, डे और नाइट, ठीक है ना, और द स्काई ओवर द समर एंड द विंटर्स. एंड इवन यू नो द डिफरेंस बिटवीन द किबीथू इज द लास्ट विलेज ऑफ द अरुणाचल. आई टोल्ड यू ना, किबीथू के बारे में बताया था ना, ये किबीथू पड़ता है. इफ यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज द अरुणाचल, एंड इन द अरुणाचल दिस इज द किबीथू. Kibithu is the last village of Arunachal, and here in the Gujarat we have the Guhar Moti. So the difference between the time taken, or the difference between the sunshine in the Guhar Moti and the Kibithu, it's near about 2 hours. So even we are asking for the separate time zone. But India की जो overall जो IST है, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो जाती है 66 नाव से, ठीक है ना. वो गाजियाबाद के मिर्ज़ापुर के आसपास से जाती है ना, देखा होगा मिर्ज़ापुर, मुन्ना भैया काइंड ऑफ, ठीक है. नैनी से, अच्छा, इलाहाबाद नैनी से जाती है, ठीक है. Transparency of the atmosphere. So obviously the transparency of the atmosphere will also determine some of the things. For example, the presence of the aerosol. What are the aerosols? Aerosol is nothing, just a dust particle. I told you the dust particle helps in the formation of the cloud. Now, obviously there'll be the formation of the water vapor is already there because of the evaporation. Because of the evaporation, the water vapor is already there, and the dust particles are already there. ठीक है ना. So these combines to form the क्लाउड, है ना. और उसके बाद पोटेंशियल रीच करेगा व्हेन द ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेस नियर अबाउट 80 to 90%, देयर विल बी precipitation happen. So aerosol, basically if there are a lot of the aerosol, what is aerosol? It is the smoke or some particles, dust particles are there in the atmosphere, so that will affect the insulation, है ना. बहुत ज़्यादा अगर डस्ट पार्टिकल्स है, जैसे आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव विटनेस्ड दैट during the winter season, है ना, after the burn of the parali, or है ना, for sure, what happened that it is very difficult to see clearly in the atmosphere of Delhi, because there is a lot of the smog. क्या बोलते हैं वहाँ पे, वो होता है स्मॉग, होता है स्मॉग इज द स्मोक प्लस फॉग, तो दिखता नहीं है, बिल्कुल धुंध छा जाती है, धुंध, हिंदी भी से धुंध, ठीक है दोस्तों. बेसिकली द डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, क्लाउड्स, so these all are affect the transparency. Now even it's written there, the clouds affect the transparency of the atmosphere, and even we have seen in the yesterday's class that the very upper cloud, for example the cirrus cloud, I have talked about the cirrus clouds now. So cirrus clouds are very upper clouds. So because of the cirrus cloud, what happen is, है ना, they reflect back the insolation. And जो lower clouds हैं, for example the cumulonimbus cloud, है ना, that helps in the formation of the precipitation, or that do the precipitation. They do what? They reflect the terrestrial radiation to keep the earth warm. क्लियर. तो ओवरऑल जो क्लाउड्स होते हैं ना, अपर क्लाउड स्पेशली, वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन टेक प्लेस टू द पार्टिकल्स, ये सारे लिखा हुआ है ओवरऑल. सो बेसिकली इफ द basically how the transparency of the atmosphere is affecting, so these particle will absorb the heat, है ना, these particle will absorb the heat, तो उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देते. तो कई सारी और भी चीज़ें हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसुलेशन की भी बात करेंगे यहाँ पर.
the land sea differentiation, now here comes the effect of the albedo also. Overall, if the you must have seen this picture of the land, the sea breeze and the land breeze. So basically this is the land breeze and the sea breeze. What is the meaning of land breeze and sea breeze? Sea breeze का मतलब क्या होता है? Sea breeze का मतलब है कि समुद्र से ठंडी हवा आएगी towards the land in the during the daytime. This is the sea breeze. ठीक, this is the sea breeze. And during the land breeze, what will happen? The cool air of the land will move towards the sea. Now, how it is happening? For example, we are very much familiar with the fact that whether it is temperature or pressure, the heat, in the case of the temperature, the heat will always flow from the higher temperature to the lower temperature. Everyone knows it, na? In the same manner, in the case of the pressure, the air pressure or whatever pressure is, it moves from the high pressure to low pressure. For example, ये कैसे होता है? For example, during the daytime, what happens? This is the earth and this is the water. So water, the specific heat of the water is more. Specific heat का मतलब क्या होता है? कौन कितनी देर में heat करता है, ठीक है ना? For example, if you want to heat the land, so the land will heat within 1 hour. Within 1 hour, the land will heat within 1 hour. So this means the specific heat of the land is very less. But if you heat the same amount of water, it will take much time, much larger time. So this means the specific heat. This means the specific heat of the sea is very much, या specific heat of the water is very large. Clear होगी बात? यहाँ पर बात करते हैं. So basically what happen कि अगर ये if the land heated up है ना during the daytime, तो if it heats up, तो temperature क्या हो जाएगा इसका? The temperature will increase, ठीक है ना? If the temperature will increase, so from here what will happen? If you increasing the temperature, so the yeah, ठीक है. Wait a minute. If you increase the temperature, then the pressure will, हाँ ठीक है. If you increase the temperature, जैसे ये हीट हो जाएगा, अर्थ हीट हो जाएगा, यहाँ का लैंड हीट हो जाएगा, the temperature will increase definitely. If we increase the temperature, what will happen? जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, है ना, will be apart from each other, so the pressure will decrease. So overall क्या हो गया? लैंड का प्रेशर कम हो गया एंड वाटर का प्रेशर क्या है? हाई है. वाटर का प्रेशर हाई है. सो दिस इज द कोल्ड ब्रीज, यानी कि यहाँ से हवा आके यहाँ पे आ जाएगी. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने. तो यहीं पे लिखा हुआ है ओवरऑल. सो इफ एनी प्लेस इज देयर, इट इज नियर द कोस्टल एरिया, है ना. फॉर एग्जाम्पल द पुणे और मुंबई, सो दीज आर द कोस्टल सिटीज. सो इन दीज सिटीज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द समर, you will not feel much heat, और ड्यूरिंग द winters are not much chilly winters. तो ये होता है ओवरऑल. तो बेसिकली द एटमॉस्फियर इज थ्रू आउट द ईयर, इट इज मॉडरेट टाइप ऑफ द एटमॉस्फियर. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड ऑब्वियसली द विंड्स जो होंगी, है ना, विंड्स ऑल्सो प्लेज अ मेजर फैक्टर इन द टेम्परेचर नॉर्मलाइजेशन, है ना. तो ये भी करेंगी. तो ओवरऑल दे विल डू व्हाट? दे विल ट्रांसफर द हीट, ठीक है ना. तो ये चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए. जैसे अब अगर बात किया जाए तो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पता चल गया. बाकी इफ फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ लैंड, सो लैंड विल बी हीटेड ओनली 1 मीटर, पर जो वाटर होगा वो 20 मीटर तक, मतलब काफ़ी नीचे तक उसमें पानी हीट होगा. और भी बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करेंट्स, बिकॉज ऑफ मोर प्रोसेस, इट विल नॉट हीट अप वेरी इजली. कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है. द वाटर विल नॉट हीट अप ईजली, है ना, बिकॉज इट हैज़ डेप्थ ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ सम करेंट्स दैट आर फ्लोइंग इन द ओशियंस ऑल्सो. नेक्स्ट, the water will also not heat up easily because it has more specific heat. ये बात कर सकते हैं. And land will heat up easily, है ना, and hence there will be sea breeze and the land breeze. Next, slope is also one of the factor. इसमें क्या होता है? for example if there is a valley, है ना, जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, and this is a hill and this is also a hill. So what happened during the day? what happened कि यहाँ से insolation आया, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ चला गया, फिर उसके बाद दूसरा इंसुलेशन आ गया, दिस रिफ्लेक्ट बैक वापस हो गया. सो इस एरिया में, इन दिस डाउन एरिया, यू विल नॉट फील एनी हीट, ठीक है ना. तो ये पूरा हीट अप नहीं होता है ओवरऑल. तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, ठीक है ना. और ड्यूरिंग द नाइट भी क्या होता है? यहाँ का जो ये हीट है, क्योंकि ये रेडिएट होकर वापस चली गई, ठीक है ना, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहेगा. मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो डाउन रहेगा और ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्लियर. और ये जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन. अभी हम बात करेंगे
अभी चलो बात कर लेते हैं. वन कॉन्सेप्ट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन. वन कॉन्सेप्ट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब द इनवर्स ऑफ इट. नाउ व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, as we move away from the earth, or as we are moving up and up in the earth, what will happen? The pressure will decrease and the temperature will decrease. This is the basic concept we have. But in the valley में क्या होता है? If this is the valley, so during the day क्या होगा कि ये सब इंसुलेशन आ रहा है पर यहीं से ये रिफ्लेक्ट पर चला गया, तो इस एरिया में कोई भी क्या है, कोई भी हीट नहीं आई है. ठीक है ना? तो इसका जो टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर लो होगा. क्लियर? बट एज यू मूव अप, अब डे में ड्यूरिंग द डे है ना, दिस वॉज हीटेड अप ना, दिस एरिया वॉज हीटेड अप, तो कुछ तो टेम्परेचर होगा. तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी विल बी मोर देन द पॉइंट ए. बट वॉट इज द नॉर्मल केस? नॉर्मल केस में एज वी मूव अप फ्रॉम द अर्थ है ना, एज वी आर इंक्रीजिंग आर एल्टीट्यूड, द टेम्परेचर शुड decrease. The temperature should decrease. But what is happening in this case? In this case, the temperature is increasing, and this is known as the temperature inversion. ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, भी बात करेंगे उसके बारे में. सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई, रफ अंडरस्टैंडिंग पता चल गई आपको, दैट एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, द टेम्परेचर शुड डिक्रीज, द प्रेशर शुड डिक्रीज. एज वी आर मूविंग इनसाइड द अर्थ, द टेम्परेचर शुड इंक्रीज, द प्रेशर एंड डेंसिटी शुड इंक्रीज. बट in the temperature inversion, what happens? As we are moving away from the earth, the temperature will begin to increase. ठीक है, this is known as the temperature inversion. ठीक है ना? Okay, and this is one more concept is there, normal lapse rate. Lapse का मतलब होता है गिरना. ठीक है ना? जैसे आप कहीं से गिर गए, so that is the lapse. ठीक है ना? और for example, sometimes if you are in some e-commerce website or any website, you seen the lapse of coins. लेट्स से यू परचेज सम कॉइन्स लैप्स हो गए, या क्रेडिट लैप्सेस. ठीक है, सो लैप्स मतलब घटना. सो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट? टेम्परेचर विल डिक्रीज, द प्रेशर विल डिक्रीज एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, क्लियर? एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज 165 मीटर per 1 degree Celsius. So if you are moving away from the earth, and if you have moved 165 meter, so the temperature will decrease by 1 degree. So this is the normal lapse rate. Now can you see here? Now why this area is warmer? So this area is warmer because of the terrestrial radiation, है ना, जो radiation reflect back हो रही है अर्थ से insolation के बाद, after the insolation, so hence it is warm. So as we move away from the earth, the air become cooler and cooler. Clear? This is the normal condition. But what happened during the inversion temperature? For example, there is a conditions like the smoke. For example, this is the city of Delhi. So there is a smoke. अब इस यहाँ पर if there is a smoke, अगर यहाँ पे smoke है तो what will happen? जो insulation है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है. Insulation is not able to penetrate this smoke. ठीक है ना? तो जो स्मोक है, the insulation is not able to penetrate. If this insulation is not able to penetrate the smoke, what will happen? The temperature here will decrease during the daytime. What will happen? Because the insulation is not able to, है ना, touch the surface of the earth, so the temperature of this area, the temperature of the city Delhi will decrease, है ना, near the surface. But the insulation is coming now, so insulation will be reflected back by this smoke. Hence this upper layer, है ना, the moment it reflected back, है ना, कुछ absorbed हो जाएगा, some will be absorbed definitely. So the case will be like some insulation will come inside the earth, not completely. Some will be absorbed by this smoke and some will be reflected by, है ना, इसको बोलते हैं refraction जैसे बोलते हैं. If the light is coming, है ना, so some will come here, some will be absorbed here and some will be reflected. Clear हो गया? So hence this area will be with the more temperature. So what we are seeing, what is the normal lapse rate? As we are moving above the earth, what should be the case? The case should be यहाँ का temperature, नीचे का अर्थ का surface के नीचे का temperature ज़्यादा होना चाहिए, and as we move up the temperature should decrease. But what is happening in the case of Delhi? The temperature of this area near the surface is less, and as we are moving above the earth the temperature is increasing. So this is the concept of temperature. This is very important concept. If you have got the concept, just first let me know. This is a very important concept actually. Have you got it? Tell me. समझ आया ला?
टेल मी, समझ में आया? ठीक है, ओके। ठीक है, एक और कई सारे फैक्टर्स और भी, दो दो कॉन्सेप्ट और बताना चाहिए। पहला चीज़ है ना, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द फैक्ट कि अर्थ इज the sun is the earth is sorry the moon is close to earth, moon is close to earth but sun is very far from us. Moon is close to earth but sun is very far from the earth, we know it. Now I'll tell you one mnemonic how to remember this fact. Now there are two terms that you need to remember. First is the perigee and the apogee, next is the perihelion and aphelion, and also the dates are also very important, will be there in the notes. So what is the perigee and apogee? Now tell me first, which word is bigger, perigee or perihelion? So you will say, sir, perigee is looking like a small, है ना, ये थोड़ा सा small है in compared to perihelion. Perihelion is looking like a big word, है ना, agree? Perihelion is looking like a big word. Now everyone knows about it, knows about it क्या, कि A for apple, A for apple, ठीक है, everyone knows it, A for apple. Now apart from the Kashmiri people, most of the time the apple is beyond our reach because it's too costly most of the time, it's not very common or stable diet. So A for apple, and apple will be beyond our jurisdiction, and P for pass, मतलब जो पास है, close, ना, the proximity, ठीक है। सो अब इसको याद कैसे करेंगे? P फॉर पेरिजी, तो पेरिजी का मतलब होता है पास. सो द मोमेंट और द कंडीशन इन विच द मून, दिस इज मून, द कंडीशन इन विच मून इज क्लोज टू द अर्थ इज द पेरिजी, एंड द कंडीशन इन विच मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ इज द एपोजी, बिकॉज ए इज ठीक है, बिकॉज समझ गए ना? तो पेरिजी का मतलब क्या हो गया? पास से पेरिजी, पास से पेरिजी, पास से पास. सो पास से पेरिजी, पास से पास का मतलब क्या हो गया? पास से पेरिजी और पास से पास का मतलब क्या हो गया कि मून जो है अर्थ के पास है, और एपोजी का मतलब क्या हो गया? मून जो है वो अर्थ से दूर है. क्लियर हो गया? अब देखो पेरीहिलियन और एपीहिलियन यहाँ पर भी ये रहेगा. पास से पास, तो पेरीहिलियन का मतलब क्या हो गया? उस कंडीशन, द कंडीशन इन विच अर्थ इज क्लोज टू द सन, दिस इज द पेरीहिलियन. ठीक. एंड एपीहिलियन इज द कंडीशन व्हेन अर्थ इज अपार्ट और फार अवे फ्रॉम द अर्थ. तो डेफिनेटली ये जो सारी चीजें होंगी, these things will also affect the overall the insulation of the earth. ये कब होता है? ये नियर अबाउट 3 जनवरी या 6 जनवरी को ऐसा होता है, ठीक है ना. और ये 3 जुलाई 6 जुलाई ऐसा आप देख लेंगे. 21 जुलाई को शायद होता है, 21 जुलाई, 21 ऑफ जुलाई या 21 ऑफ जुलाई, यू विल सी द डेट्स, ठीक है ना. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉट ऑफ द एग्जाम. कई सारे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है ना. दिस हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड कि ओवरऑल उसका डेट क्या है, व्हाट इज द डेट ऑफ द पेरिहिलियन और एपीहिलियन, और दे विल आस्क द क्वेश्चन इन सच ए मैनर, दैट व्हाट इज द when is the moment, or what is the date when earth is close to the sun, so you need to mark perihelion, p से पास, ऐसे याद रखोगे, p से पास पेरीहिलियन, और एप्पल बहुत दूर है, याद रहेगा ना, निमोनिक अच्छा है ना. p से पास और a एप्पल बहुत दूर है, तो पेरीहिलियन के केस में पास रहेगा, और यहाँ पर पेरिजी के केस में पास रहेगा. और पेरिजी इज अ स्मॉलर वर्ड कंपेयर टू द पेरीहिलियन. तो स्मॉलर है मतलब मून, बड़ा है मतलब सन. हीट बजट वही मतलब है कि ओवरऑल कितना टेम्परेचर आ रहा है, इंसुलेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट. हाउ मच टेम्परेचर इज कमिंग आउट, है ना, हाउ मच इंसुलेशन इज कमिंग, हाउ मच इट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ, है ना. सो इसका जो ओवरऑल एवरेज है, इट इज द हीट बजट, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. एल्बिडो वी हैव सीन वेरी मच. एल्बिडो क्या होता है हमने अच्छे से बात कर लिया है. एंड एल्बिडो, व्हाट इज द एवरेज एल्बिडो ऑफ द अर्थ, अच्छा मैंने क्या लिखा? इफ एल्बिडो इज 0.4, what this means, रिया? 40%. हाँ, 40% क्या? 40% रिफ्लेक्ट होगा. हाँ ठीक है. इफ 0.4 तो मतलब हो गया 40% विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दी अर्थ. नाउ एंड इफ इट इज 0, 100% observed. 100% ऑब्जर्व. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ? क्या लगता है क्या होगा?
एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ? 0.830. Sorry. कौन बोला, सुशनिम? Yes, sir. हाँ ठीक है, 30%, यानी कि पॉइंट No, थ्री। no, no. ठीक है, सही है, सही है, Oh, सही है, 30%, 0.3। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितना कितना परसेंट कौन रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नो जो होती हैं वो 0.8 टू 0.95 कर देती हैं, अच्छा है हमारे लिए। ग्रास इतना करती है, फॉरेस्ट इतना करते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, सी फ्रॉम देयर। एक यूपीएससी क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करोगे? चलो बताओ। क्लासेस बढ़वानी पड़ेंगी अगर इस तरह से पढ़ना है तो आपको, सर को बोल के, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। मतलब आई एम गोइंग इन अ वेरी डिटेल्ड। ठीक है ना, मतलब मुझे बता दो, वरना फिर मैं घसीट दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, क्यों दिव्या? ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हो रहा है? sir, ठीक है. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी स्लो हैं, फिर क्लासेस बढ़वानी पड़ेंगी आपको। तो बढ़िया हो गया। सर हम बात कर लेंगे सर से. हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को बात करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्टडी लाइक दैट। सब लोग Yes, एग्री है? sir. नहीं, सब लोग एग्री कि खाली दिव्या बोल रही है यहाँ पे? हाँ। सर ठीक है. आप अभी जैसा पढ़ा रहे हैं मतलब थोड़ा हम्म। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना इसलिए. हाँ तो लेकिन फिर वही है कि सर से बात कर लेना, मतलब मेरे को मत बोलना कि हाँ, ओके. जो मेरे ऊपर आ जाए। दिस इज फॉर एवरी वन की रिव्यू सबकी। चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से, फास्ट। इसलिए तो मैंने तुम्हें हाफ एन आवर दे के रखा है, अदरवाइज मेरा टाइम है, आई कैन जस्ट डू एनीथिंग आई वांट, बट आई वाज लाइक नहीं नहीं, शुड बी इवन टू यू। चलो बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर? 3, sir. हाँ, 3. 3। ओके, और एनीवन? 3, sir. सुशनेम? Sir, 3. धर्मित, धर्मित का तो चेहरा नहीं दिख रहा है इधर पे, थोड़ा कहीं सो तो नहीं गए आप? कहाँ पे हैं अभी? हैं, हाँ दिखा, कुछ थोड़ा सा दिखा। सही से बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा ऐसे बैठा करिए, कैमरे कैमरे में कुछ तो दिखे, फेस तो दिखे थोड़ा सा एटलीस्ट। किसी का पंखा दिख रहा है, किसी की लाइट दिख रही है। ठीक है, चलिए धर्मित आपका क्या आंसर है? Yes, 3. 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द अदर 3। तो यहाँ से ही देख लो, तो यहाँ पे वो 35% है, 8% है, ये सब है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? 80 to 90% स्नो, स्नो कैप माउंटेन्स। सो लैंड कवर विद द फ्रेश स्नो। ठीक है ना? ओके, कुछ और बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द हीट एंड द कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। कैसे हीट होता है, मूवमेंट ऑफ द एयर, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, लैप्स रेट। यू हैव स्टडीड द लैप्स रेट ना? यू हैव स्टडीड द लैप्स रेट, द मोमेंट यू गोइंग अबव द अर्थ, हाउ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वो लैप्स रेट है। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, विल टॉक अबाउट। टेम्परेचर इन्वर्जन, देखो ये बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं। हीटिंग कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ये बात कर चुके हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थ, लो ठीक है, इसको बात कर लेते हैं। काफी सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? सो बेसिकली अर्थ आफ्टर बीइंग वार्म्ड, इंसुलेशन, ट्रांसफर हीट, एटमॉस्फेरिक लेयर, ऑब्वियसली हीट, हीटिंग कैसे हो रही है? फ्रॉम द इंसुलेशन द हीटिंग एंड द कूलिंग, द इंसुलेशन, फ्रॉम द इंसुलेशन द हीटिंग इज हैपनिंग, एंड द मोमेंट इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक, है ना, द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इट इज कॉजिंग द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो बेसिकली here are the three phenomena जो समझने, the conduction, advection and the convection. Conduction, advection and convection. So where you have seen the conduction, conduction क्या होता है? So conduction is nothing, conduction is nothing, if you have taken a rod, if you have taken an iron rod, this is an iron rod, ठीक है ना? if you heat, if you heat this part of the iron rod, ठीक है, तो slowly what will happen, if you are heating this part, so it will heat like that, and then later on this point B, if you are started to heat from the point A, the point will be, B will also be heated up. So this is known as the कंडक्शन। कंडक्शन हैपन वाया सम पार्टिकल, सम इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से कंडक्शन होता है। नेक्स्ट होता है एडवेक्शन एंड कन्वेक्शन। व्हाट इज द कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या क्या होता है? कन्वेक्शन इज, इट इज जस्ट लाइक इफ द हीट इज फ्लोइंग और एनीथिंग इज फ्लोइंग इन सच अ वे, ऐसे, दिस इज द कन्वेक्शन। क्लियर? एंड इफ heat or air is flowing in this way, this is the advection. Advection, so means we can say the horizontal movement of anything, it is the convection, and vertical is advection. देखो यहाँ पे होगा, this is look, उप्स उल्टा बता दिया क्या? हाँ उल्टा बता दिया, वेट अ मिनट, ये सी था, सॉरी सॉरी, सही तो नहीं, सही नहीं बोला ना, एडवेक्शन वो हो जाएगा।
हाँ ठीक है, कन्वेक्शन ये है, ओके, हाँ सही बोला, वी सी, दिस इज कन्वेक्शन एंड दिस इज द एडवेक्शन। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ए मतलब बिल्कुल ठीक है, पहले ए के बारे में पहले बात करेंगे हम, फिर उसके बाद सी बाद में आता है। तो सी मतलब क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर टू प्रोसेसेस। If the heat is transferring, or if we are transferring anything, if the, let's say, air is moving, ठीक है ना, if the air is moving in the horizontal direction, so this is the advection, ठीक है ना, this is the advection. But if it is moving in the vertical direction, so this is the convection. Clear, that much only. तो कंडक्शन हमने समझ लिया, एडवेक्शन और ये भी समझ लिया, और थोड़ा देख लेते। तो कंडक्शन क्या हो गया, कंडक्शन द एयर इन द इंटरेक्शन, ठीक है ना, लैंड गेट्स द हीटेड ग्रेजुअली एंड द अपर लेयर ऑफ द टच। क्या मतलब बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है ना। व्हाट आई हैव सेड हाउ द कंडक्शन हैपन, बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स, सम पार्टिकल्स, द कंडक्शन विल हैपन। सो इन दिस केस यहाँ पर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना। सो व्हाट वी आर सेइंग, ऑब्वियसली अर्थ में भी वी हैव द लेयर्स। सो व्हाट इट इज सेइंग दैट द कंडक्शन विल हैपन फ्रॉम दिस लेयर टू दिस लेयर। तो पहले ए में आएगा, फिर बी में आएगा हीटिंग, फिर सी में आएगा, दिस विल हैपन ना। अर्थ में भी लेयर्स है ना, टॉप as we talked as in the yesterday's class, नहीं ना, the day before yesterday we talked about the top soil सबसे ऊपर की जो soil है। इसी तरह ठीक है, ह्यूमंस में भी, in the humans we have 3 layers of skin, clear? So the land get heated gradually and the upper layer touched with the lower layer gets heated. This process is known as the conduction. तो overall सारी layer heat कर रही हैं, this is not known as the conduction. Clear हो गई? Movement of air, how the air moves, so air could be moved horizontally and vertically in both the direction. If it is moving horizontally, तो इसको बोल दिया हमने क्या, the advection. And if it is moving vertically, VC, you can remember from the VC, vice chancellor or vice president kind of VC, ठीक है ना, VC, ठीक है ना, है ना। तो एंड ऑब्वियसली जो बताया तुमको कि ये कैसे मूव करता है, हमेशा प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, ठीक है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। वन मोर थिंग इज diurnal variation. I have already talked about the diurnal temperature. What is diurnal temperature? The maximum and the minimum temperature of a day is known as the diurnal temperature. The maximum and minimum temperature of a day is known as the diurnal temperature. So diurnal variation is caused by the advection only. Clear हो गया, ठीक है ना, ओके। एंड इन द समर एरिया इन द नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, एक चलती है, द लोकल विंड इज द लू। हैव यू हर्ड अबाउट द लू? लू इज द लोकल विंड, लू इज द लोकल विंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में, मेनलैंड इंडिया में, देयर इज अ लोकल विंड नेम लू। सो लू इज द लोकल विंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, लू इज द लोकल विंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की लू क्या है, लोकल विंड है। एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एडवेक्शन ओनली, बिकॉज ऑफ द advection only. And the convection, this causes the transfer of the energy, ठीक है ना, to the troposphere. तो troposphere में transfer of energy ये cause करता है। तो I have made some maps, देख लोगे यहाँ से, this is the conduction, this is the convection, and this is the radiation. Radiation you know very well. Radiation is whatever coming from the upper layer या space से जो आ रहा है। And even for the radiation, ठीक है ना, फॉर द रेडिएशन बेसिकली यू डोंट नीड वैक्यूम, यू डोंट नीड ए मीडियम। तो रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी आ जाएगा, बट फॉर द कंडक्शन और फॉर द कन्वेक्शन एडवेक्शन, तो उसको लिए तुम्हें वैक्यूम नहीं होगा, उसके लिए एक मीडियम चाहिए आपको। तो यू कैन सी द कंडक्शन इज हैपनिंग थ्रू द ग्राउंड एंड एडवेक्शन इज देयर, दिस इज द रेडिएशन। लैप्स रेट, वी नो वेरी वेल अबाउट द लैप्स रेट, ठीक है ना, कि एज विल मूव, है ना, अबाउट द सर्फेस ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर विल डिक्रीज, है ना, तो इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज द लैप्स रेट। टेम्परेचर विल फॉल, ठीक है, टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे को प्रोपोर्शनेट करता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है? सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक, दिस इज अ प्रोसेस, एंड द मीनिंग ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस इज देयर इज नो चेंज ऑफ हीट। सो फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देयर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होगा? द लैप्स रेट वी नो इट वेरी वेल, द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल डिक्रीज एंड मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ। So adiabatic lapse rate मतलब there will be no change in the medium, there is no change in the medium, not very important, but इतना आपको पता होना चाहिए, that much you should know कि what is the lapse rate, ठीक है ना, and what is temperature inversion, इस तरह की चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ नहीं है सब, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन पता है हम लोग को बहुत अच्छे से, ठीक है ना, as will move away from the surface of the earth, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। व्हाट आर द आइडियल कंडीशन फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन? क्या कंडीशंस हैं फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन? सो बेसिकली देयर आर लॉन्ग नाइट्स,
लॉन्ग नाइट्स है, आउटगोइंग रेडिएशन है ग्रेटर देन द इनकमिंग रेडिएशन. ऑब्वियसली इफ द आउटगोइंग रेडिएशन दैट इज द लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग रेडिएशन है ना, या ये कौन सा था, दिस वाज द इंफ्रारेड. इंफ्रारेड अगर ये ज़्यादा है कंपेयर टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज द अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन, और इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव. if there are clear skies, it also helps in the temperature inversion. ठीक है ना, because if the sky is not clear, if there is a cloud, definitely we have seen it hinders the insulation also. ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में भी दिक्कत करता है. क्लियर. और वेदर अगर आपका काम और स्टेबल है, सो डेफिनेटली ये भी क्या करता है, ये भी हेल्प करता है. इन्फो माउंटेन वैली इन्वर्जन बात कर चुके हैं इसके बारे में. यू गॉट द कॉन्सेप्ट ना, वैली वाला कॉन्सेप्ट, कि वैली में हाउ द टेम्परेचर इन्वर्जन हैपन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. एवरीवन नोड योर हेड, नोड योर हेड. ठीक है ना, बात कर चुके हैं इसके बारे में. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब देखो लिखा हुआ है क्या, कि माउंटेन जो होगा रात में माउंटेन का ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये ना ये कूल रहेगा एकदम, है ना, ये कूल रहेगा, यानी कि टेम्परेचर डाउन रहेगा, और ऊपर वाला हॉट रहेगा, वार्म एयर रहेगी. वी हैव टॉक्ड अबाउट सरफेस इन्वर्जन, वही सरफेस के बारे में, इन्वर्जन के बारे में बात किया है. सरफेस मतलब अर्थ के पे इम्प्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, ओके. प्रेशर सिस्टम, प्रेशर बेल्ट, ओके. जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, टाइप्स ऑफ विंड. अभी तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए. कुछ पूछना है, कोई डाउट? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. प्रेशर सिस्टम के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर एंड टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में. सो सबसे पहले एवरीवन शुड हैव दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि जो विंड, हाउ विंड फ्लोज, जो विंड होती है वो फ्लो कैसे करती हैं. ठीक है ना. सो विंड फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इवन जो टेम्परेचर होता है, इट ऑल्सो मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इवन वाटर भी है, जो हाई प्लेस से, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में वाटर जाएगा. ठीक है ना, ये ऐसे होता है. पढ़ते हैं इसको. प्रेशर सिस्टम क्या है. एयर एक्सपेंड्स व्हेन द हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन द कूल्ड. दिस रिजल्ट्स इन द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. ठीक है, इन द मोशन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज एंड सिंक. एक मिनट. ठीक है, ना एक मिनट, मैंने मार्क नहीं की थी, कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं की थी. हाईलाइट करो, ईजी रहता है फिर कि कुछ बताना है आपको. देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहे हैं. देखो कि पहली चीज़ की वाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर इज कमिंग. प्रेशर में डिफरेंस क्यों आ रहा है इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द मेन क्वेश्चन. So what I told you, abhi the moment I told you about the sea breeze and the land breeze, the moment I told you about the sea breeze and land breeze, so there I have explained what I have explained, that if there is a land mass, so if there is a water, so this is the water and this is the land. ठीक, insulation आ रही है, insulation is falling on both the, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, दोनों पे आ रही है. But the difference is this land will heat up easily, है ना. ये क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा इजीली बढ़ जाएगा, पर इस वाटर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो इजीली नहीं बढ़ेगा. तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा. रीज़न क्या है, बिकॉज वाटर बहुत ज़्यादा डीप में है, डेप्थ है उसकी, वाटर की बहुत ज़्यादा डेप्थ है. देयर इज नॉट मच डेप्थ ऑफ लैंड, लैंड तो सॉलिड है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑल्सो comes into play. And apart from that, in the case of water, what happen कि the circulation of water happens all the time ना, water move करता है. So because of that what happen कि if there's a warm water, so warm water क्या होगा, warm water will sink, नीचे चला जाएगा, फिर ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा. So there will be proper circulation of the water that will go on, वो चलता रहेगा. ठीक है ना, जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा वो क्या रहेगा, वो चलता रहेगा. क्लियर. सो बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल उसका जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा. सो व्हाट हैपन, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गया, सो एज वी, इट इज क्वाइट सिंपल फिजिक्स, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, what will happen, the molecule, the gaseous molecule, they will be apart from or at a larger distance from each other. सिंपल सी बात है भाई. इफ एक सॉलिड में क्या होता है, इन द सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर
at some space, and in the gas the particles are at a very great distance. ठीक है, this is the basic physics. So as we will increase the temperature, the particle will be at a larger distance. ठीक है, so जो atmosphere के जो particles होंगे will be at a larger distance, and if the atmospheric particle at a larger distance, so the pressure will decrease. The pressure will decrease. So here the pressure is low and here the pressure is high because the temperature is not very much increased. ठीक है ना, एक मिनट जाओ तैयार हो गया ये ठीक है, क्लियर होगी बात. तो ओवरऑल दिस इज कॉजिंग द चेंज इन प्रेशर. ठीक है, चेंज इन प्रेशर. तो अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि द हीट गेट कंप्रेस्ड व्हेन द कूल्ड एंड वेरिएशन, ये सब बोल रहे हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द एयर. सो व्हाई द एयर इज, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, व्हाई द एयर इज मूविंग एवरी टाइम फ्रॉम हियर एंड देयर. So this is because of the change in pressure. So the pressure of one area is greater than the other area. Hence the wind is moving at a particular direction. Now here comes the two factors or two world. One is air and next is the wind. What is the difference between the air and wind? This is a very common question. What is the difference between the air and wind? So air is only air है ना. Air is molecules जो चीज़ें जैसे अभी यहाँ पर क्या है, इस कमरे के अंदर क्या है, एयर है, विंड नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ, because this room is packed. So what is the wind then? So the horizontal movement of the air is known as the wind. Quite simple. The horizontal movement of the air is the wind. So if the air is moving horizontally, ठीक है ना, and that is what we have seen, advection, है ना, क्या बोलेंगे उसको? If the air is moving horizontally, what we have seen, advection ना, remember, भूल गए अभी, ये देखो, भूल गए. This horizontal movement is known as the advection. ठीक है ना. So this is what wind. क्लियर होगी बात. ठीक. And the vertical rising of the most of the air, ठीक है ना, forms the cloud and brings the precipitation. Definitely the vertical movement होगा, and the vertical movement is known as the convection. Clear. And this was what? This was the advection. Clear. And this will cause the precipitation. And in the precipitation, and what factors we have seen, the water vapor is there already in the atmosphere, and because of the smoke, the smoke, smoke or aerosols, these dust particles will join, or the intermingling will happen with the water vapors, and then when the humidity reaches up to the threshold level, it will result in the precipitation. ठीक है. नाउ इट्स अबाउट द प्रेशर बेल्ट. सो व्हाट इज द प्रेशर बेल्ट, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा. अ राइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स द फाइन एंड स्कैटर्ड वेदर, ठीक है ना, व्हाइल फॉलिंग प्रेशर इंडिकेट्स द अनस्टेबल एंड द क्लाउडी वेदर. काम करो आप भी इसको, चलो मेरे साथ पढ़ो था, तो थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता हूँ उसको. रीड इट विद मी. ठीक है, इसको देखो इसमें क्या लिखा है, देन टिल देन मार्क सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे. विल बी इजी फॉर मी और यू ऑल्सो. ठीक है, पढ़ लिया इसको आपने. क्या क्या लिखा है इसमें, देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर बेल्ट्स के बारे में. व्हाट आर द प्रेशर बेल्ट्स? नथिंग. वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रेशर प्रॉपर्ली. वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रेशर. सो इन द प्रेशर व्हाट इज हैपनिंग, द प्रेशर ऑफ एट ए पर्टिकुलर प्लेस, at a particular point A, it is more than the point B. So these things are happening. So what are the pressure belts? Nothing. Now can you just imagine this, if this is the earth, है ना, and obviously this is the tropical area, 23 and half. Clear. So this is the area where this area is receiving the maximum sunlight. So definitely the temperature will be higher, so the pressure will be lower. Clear. The pressure will be lower. Temperate region में क्या होगा, in the temperate region यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा. गेटिंग अ पॉइंट. सो दिस इज क्रिएटिंग व्हाट, दिस इज द प्रेशर बेल्ट ना. ये एक प्रेशर बेल्ट ए हो गई, ये दूसरी प्रेशर बेल्ट क्या हो गया,
बी हो गया. सो दिस इज हेयर वी आर टॉकिंग. ठीक है ना. तो ओवरऑल बात कर रहे हैं इसके बारे में. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट राइजिंग प्रेशर. ठीक है ना. सेटल्ड वेदर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. ओवरऑल नेक्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट द आइसोबार्स. नाउ सम टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल द आइसोबार. ठीक है ना. आइसोबार्स या आइसोथर्म्स. ठीक है ना. और आइसोहेलाइन, इस तरह से सुना होगा आपने. व्हाट आर द आइसोबार? Isobars are the basically the levels of the equal pressure. So if at a particular place, कोई latitude longitude हमने कर लिया, जैसे अगर हमने ऐसे बनाया, ठीक है ना, we have drawn this line and this line. Now what we are saying, the pressure at this point A, it is equal to the pressure at this point B. So these two lines है ना, or these two pressure belts, whatever you want to say, ठीक है ना, have equal, because they have equal pressure, so they are what? They are the isobars. If they point A and B, and this word is important, ये वो शब्द important है, because this can be directly asked in exam कि होते क्या, what are the isobars. For example, if the temperature between the point A and B, है ना, or at the point A and B is equal, then temperature is therm, so this is known as the isotherms. Temperature equal है, isotherms, isobar. If I say isohaline, so overall जो salt है, salt containing जो चीज़ें हैं, है ना, वो equal है. So these things are important. Isobars, isotherms, ये सारी चीज़ें क्या है, important है. Next the term is the pressure gradient. What is the pressure gradient? तो overall जो change in pressure होता है, that is known as the pressure gradient. Gradient means if anything is increasing or decreasing at a particular manner, and ascending order में, descending order में, that's known as the gradient. ठीक है ना. And then we have talked about the pressure belt already. Now we can see here, कुछ यहाँ पर देखते हैं. Near the equator, है ना, the sea level pressure is low. And the area is known as the equatorial low. ठीक है ना. Along the 32 south high pressure रहेगा, also known as the subtropical high. ठीक है. तो ओवरऑल यहाँ प्रेशर के बारे में बात किया गया, कैसे कैसे चीज़ें होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए इक्वेटर के आसपास, सो वी नो इट वेरी वेल. अभी बताया मैंने आपको. इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इक्वेटर, सो इन दिस इक्वेटर, this is the tropical area, है ना, receiving the maximum sunlight. And if this area is the tropical area is receiving the maximum sunlight, so definitely the pressure will be lower ना, है ना, because the particle will be at a much larger distance. ठीक है ना. So definitely the pressure will be low at this area. We have just seen, hence it is known as the equatorial low. So you got the concept of the equatorial low, है ना. So if there's a question or any statement is there, ठीक है ना, that what is the meaning of equatorial low, or in the section of the equatorial low what is the pressure, it's higher or lower, so you can definitely answer this thing. And why it is so, what is the reason behind it? Because of the insolation, or because the insolation is maximum in the tropical area. ठीक है ना. Next is 30 degree north and south, which is known as the high pressure belt, known as the subtropical high. Subtropical high, or you can also call it as the temperate also ना, temperate भी बोल सकते हैं उसको. Why it is high? Because the insolation is slant. The sun is casting its ray at a slant position. What it called as the slant. Taper. I used the word taper in the yesterday's class. Taper is not a Hindi word, it's an English word. Taper. ठीक है. Subtropical high, सारी चीजें हो गई. Near the poles the pressure is high and it's known as the polar high. ठीक है ना. Polar high. And most of the winds, है ना, very cold freezing winds comes from the poles. And you must have heard about the polar vortex. Polar vortex क्या होता है overall, जो this is very interesting concept. Let me show you polar vortex. Polar vortex होता क्या है overall? What happen is, if this is the earth, है ना, this is just Google polar vortex, अभी फिर टाइम चला जाएगा. तो overall the region near the poles, ठीक है ना, the pressure is very high. So what happened? The cold freezing winds blows from the poles. And sometimes what happen, they come near the tropical area. Maybe for example Canada में तो रहती है definitely, in the region of the Canada will be there. So but the thing is कि Canada में मतलब इतनी नहीं रहती है. But if the circle increased at a larger distance, it will come at a lower point. Let me show you.
ठीक है, तो इस तरह से होता है ओवरऑल. एंड मैनी टाइम्स दिस बिकम न्यूज ऑल्सो, है ना, कई बार न्यूज भी बन जाती है. व्हाट इज इट? लुक, इन द नॉर्मल कंडीशन व्हाट हैपन, बिकॉज दिस इज द स्टेबल पोलर वर्टेक्स. This is the stable polar vortex. Means the colder air, now the cold air, it is coming and it is just moving around, or it is doing the circumlocution in the region of the poles only. In the region of the poles only. This is the normal condition. But if the pressure increased at a drastic rate, if the pressure increase at the a drastic rate, what will happen? Sometimes it breaks its path. ठीक है ना, and it ventured into the lower area, doing a lot of destructions. ठीक है ना. So overall it will move in the area of near about the upper Canada, or in that area. ठीक है ना. And there'll be lot of all the region will be come under the influence of these cold winds. ठीक है ना. Clear? तो ये पता होना चाहिए. You can see here. ठीक है ना. ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको. ये मैप आपको प्रैक्टिस करोगे, है ना. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम आल्सो. ओवरऑल की ट्रेड विंड्स कहाँ चलती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क वेयर द ट्रेड विंड्स फ्लो. सो यू हैव टू आंसर देयर कि ट्रेड विंड्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ. इस तरह से आपने इस तरह आंसर देना है. ट्रेड विंड्स कहाँ फ्लो करती हैं, वेयर द वेस्टर्लीज फ्लो. ठीक है ना. दे आर द पोलर ईस्टर्लीज. सो दिस प्रैक्टिस दिस मैप. और बेसिकली ये होता कैसे है, ये होता कैसे नाउ. कैन यू सी हियर, कैन यू सी दिस थिंग कि द इन द दिस इज इक्वेटर. सो डेफिनेटली द टेम्परेचर इज हाई, सो हेंस द प्रेशर इज लो. प्लीज एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. एवरीवन जस्ट, दिव्या शर्मा लेफ्ट, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. रिकी, रिया, ध्यान से देखो. This is the tropical area, so hence the temperature is high and the pressure is low. And this area is the subtropical. So here in this area the temperature will be lower. Sorry, the temperature will be lower, so the pressure will be higher. Clear? So if the temperature is low, pressure will be high. So obviously the wind moves from the high pressure to low pressure. So in this area the pressure is high, in this area the pressure is low. So hence this is the reason the air is moving in this direction. And why this direction only? Why this direction? Why not this? So this is the answer is hidden in the concept of the Coriolis force. है ना. ये तो पता होगा Coriolis force के बारे में. ठीक है ना. Coriolis force. अच्छा, Coriolis force के बारे में एक और चीज बताई थी, है ना, एक और. तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा. This is also subtropical area. Hence the wind is moving in this direction from the high pressure to low pressure. ये high pressure है. ठीक है ना, ये हाई प्रेशर. और यहाँ पर भी आता है 60 डिग्री पे आता है. इट इज द सब पोलर लो. सो इन दिस एरिया सब ट्रॉपिकल हाई से जाएंगे यहाँ पर दीज आर द पोल्स, सदर्न पोल्स में ऑब्वियसली टेम्परेचर इज वेरी लो, सो प्रेशर इज वेरी हाई. क्लियर? सो हेंस इट विल मूव लाइक दैट. These are the polar easterlies, and this will case happen also in this area. This is the subpolar low में. So the winds will flow from the subtropical high to this area, and from the northern polar, तो यहाँ से the wind will flow in this directions. Clear? तो overall यहाँ पे क्या याद रखना है, what is important from the point of view of the exam, you need to remember that where the trade winds flow first of all. So trade wind flow in the from the 30 degree to मतलब 0 to 30 ऐसे बात कर सकते हैं. In the tropical area you can say. Next are the westerlies, so where the westerlies flow. So westerlies flows in the subtropical high. This is one thing. Next एक और important concept है. I told you the concept of the aurora. So I told you the concept of the aurora borealis and aurora australis. Now this is your homework कि वैसे तो मुझे याद है, वैसे तो the aurora borealis it is there in the northern hemisphere, but you will do the cross verification. And aurora australis this is in the southern hemisphere. तो होता क्या है, what I told you, मैंने बताया था कि this is the sun यहाँ पे है. ठीक है. और सन से क्या निकल रही है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट मैग्नेटिक रेडिएशन इज emitting from the sun. It's coming out from the sun. Clear? And also because earth is what, अर्थ है क्या भाई, अर्थ ऑब्वियसली इट इज अ जियोमैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना अर्थ में, है ना. हेंस
जैसे हमारी बात किया जाए, इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, बट इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, वो कहाँ पे होंगे सुष्निम? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। रिया, रिकी, देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, एवरीवन नोज इट, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, सो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। भाई आप क्या करते हो, जस्ट टेक यू हैव टेकन अ कंपास, इस तरह का कंपास होगा आपके पास, दिस इज द कंपास, ठीक है, ये कंपास है, ठीक है। इसे क्या करते हैं, वी फाइंड द डायरेक्शन, जैक स्पैरो वाला है ना, जैक स्पैरो। सो दिस इज द कंपास। सो बेसिकली हम जब इसको नॉर्थ में रखते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, इट ऑलवेज गॉट स्टिक टू द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में ही क्यों जाता है हमेशा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है, इन दी मैग्नेट व्हाट हैपन, अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, ये तो पता है ना, इन दी मैग्नेट अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, क्लियर। सो व्हाई दिस कंपास ओनली स्टिक टू द नॉर्थ एंड साउथ, बिकॉज इसका जो नॉर्थ है, इसका जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ में हमेशा क्यों जा रहा है, क्योंकि बेसिकली वहां पर एक्चुअल में, क्योंकि ये मैग्नेट है ना, एंड मैग्नेट के ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अगर नॉर्थ में जा रहा है तो उसका मतलब मैग्नेट के हिसाब से वो साउथ है, इसलिए नॉर्थ में आ रहा है, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है और ये यहाँ पर जा रही है, और यहाँ से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है, जब दोनों मिलती हैं इट कॉजेज सम लाइट्स, एंड दीज आर नोन एज दी नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये नॉर्थ में रहती है, साउथ में रहती है, कंफर्म कर लोगे लेकिन एक बार इसको पता होना चाहिए। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, बात कर चुके हैं इसके बारे में, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है ओवरऑल भाई, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर, लो प्रेशर वी नो इट, व्हाई देयर इज अ लो प्रेशर इन द ट्रॉपिकल एरिया, बिकॉज द टेम्परेचर इज लो, हेंस देयर इज अ लो प्रेशर, एंड हेंस उसको पूरा बोल दिया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। एक और आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द ITCZ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या होता है, देखो इंटर ट्रॉपिकल, इंटर मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, one there are two words actually, one is the intra and second is the inter. Intra means within that boundary, if we are having a if we are having interstate transportation, intra-state transportation, so the transportation is happening within the state. If we are having the interstate transportation, the transportation is happening from one to other state, ठीक है। सो इंटर ट्रॉपिकल सो वन ट्रॉपिक टू अदर ट्रॉपिक, कन्वर्जन जोन व्हाट इज इट, देखो सिंपल क्या होता है, सिंपल की इसमें अच्छे से दिखाया नहीं है, इट इज लाइक दैट, लुक एक मिनट, ये ठीक है। देखो ITCZ क्या होता है इसको समझेंगे। सिंपली क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो अर्थ होता है वो मूव करता है, डेफिनेटली सबको पता है कि ये सन है, अगर इफ दिस इज सन, ठीक है, सो अर्थ क्या करेगा, अर्थ विल मूव अराउंड द सन, अर्थ अर्थ के अराउंड में मूव करेगा, ठीक है ना। लेट मी या दिस इज गुड, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। देखो सिंपल से क्या होता है कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, पर होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ जून, ठीक है, जो जून की कंडीशन में क्या होगा, दिस पार्ट ऑफ द सन, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्सपोज्ड टू द सन,
दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्सपोज्ड टू द सन, ठीक है ना। पर यहाँ आते आते, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाला है, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज बिगन टू कम और इट हैज बिगन टू एक्सपोज टू द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो दिस इज इट, तो अभी नॉर्दर्न में है। कुछ समय बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिसंबर के बारे में बात करूँ, जो दिसंबर से हम होके आ रहे हैं अभी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो सन की लाइट है वो नॉर्दर्न में ना पड़ के कहाँ पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे यहाँ क्या होगा, विंटर होता है। सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि समटाइम्स द सन casts its ray at the northern hemisphere and sometimes at the southern hemisphere, यानी कि समर सोलस्टाइस, दिस इज नोन एज द समर सोलस्टाइस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देखो लिखा हुआ है समर सोलस्टाइस, ये जून सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस भी बोल देते हैं उसको, समर सोलस्टाइस। सो ड्यूरिंग द समर सोलस्टाइस सन इज कास्टिंग इट्स रे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट ड्यूरिंग द विंटर सोलस्टाइस, दिस इज द विंटर सोलस्टाइस, सन कास्ट्स इट्स रे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ओवरऑल क्या होगा कि जहां पर फॉर एग्जांपल इन द केस वन, इन द समर सोलस्टाइस, इफ द सन इज कास्टिंग इट्स रे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, so what is happening, there be less temperature, there be more temperature in the southern hemisphere definitely, okay, there will be more temperature in the southern hemisphere and less pressure, clear. But if it is casting its ray in the southern hemisphere, so there will be more temperature in the southern hemisphere and there will be less pressure here in during the winter. So अगर pressure को हटा दो, if I just talk in terms of the temperature, so during the summer there will be more temperature in the northern hemisphere and during the winter there is more or there is less temperature, या यही बोलते there is more temperature in the southern hemisphere. So what I'm trying to say that the temperature, there will be variation in temperature and that is only known as the ITCZ. So ITCZ क्या हो रहा है, look, during the this is the month of July, this is the month of July. So during the July what is happening, the sun is over the head in the northern hemisphere. So ये जो region होगा ये गर्म रहेगा, yes or no, this India, this is the India na, you can see the India. So this part will be very hot because it's what, it's July, but जनवरी में क्या होगा, ये नीचे मूव कर जाएगा और ठंडी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे मूव करेगा। तो ओवरऑल दिस मूवमेंट ऑफ द ITCZ और मूवमेंट ऑफ द टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दिस इज नोन एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी फिर कल बात करेंगे, विल टॉक अबाउट सम मोर कॉन्सेप्ट्स एंड देन लेटर ऑन विल मूव टू द हेडलेसर और काफ़ी सारा कुछ बात करना है, नॉट वेरी लैंड ब्रीज सी बीज. What is the next chapter? Next is the okay winds, geostorms, है ना. So basically these all are even the chapters of the climatology. तो ठीक है, if you have any doubts just let me know, ठीक है. सर आइसोथर्म्स क्या है, मतलब एक बार फिर से बता दीजिए ना, हम मिस कर दिया था थोड़ा सा. कहाँ गई थी सोना तुम? अच्छा कौन, सुष्निम सॉरी. हाँ सर. आइसोथर्म्स. Yes sir, isotherms. Okay, so basically Yeah. एक मिनट, yeah, will beep it. So basically isotherms क्या होते हैं? Isotherms they are nothing, they are just iso means क्या होता है? The meaning of the iso is the same. The meaning of the iso is the same. ठीक है ना? So isotherms मतलब क्या हो गया? The temperature is same. So if there are 2 points or there are 2 lines or 2 places having the same temperature, that will known as the isotherms. But here we are talking in terms of the atmosphere, where we are going or we are reading the climatology. So we are talking in terms of the atmosphere. So if in the atmosphere there are 2 layers having at the same temperature, known as the isotherms. ठीक है? उसी तरह से isobars हो जाएंगे. Yes sir. सर वो जो आपने वो डायग्राम दिया था ना रिगार्डिंग दिस इक्वेटोरियल, दिस सब ट्रॉपिकल हाई एंड ऑल, तो उसमें जो मतलब विंड्स एंड मतलब वो जो फ्लो हो रहा है ना विंड, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को मतलब इट शुड बी लाइक, अगर इट्स नॉट द स्ट्रेट विंड्स मींस इट्स फ्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लाइक दैट, ऐसा करके मतलब क्वेश्चंस आएगा. नहीं यहाँ वहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर द ट्रेड विंड्स फ्लो. सो ट्रेड विंड फ्लो फ्रॉम द इन दी ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है. सब ट्रॉपिकल कहाँ पर फ्लो करती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, बट ओवरऑल दे कैन आस्क द पोजीशन एंड नेक्स्ट दे कैन आस्क द लैटिट्यूड्स, एट व्हाट लैटिट्यूड्स, ठीक है ना, लैटिट्यूड्स.
कि Okay, sir. फॉर एग्जांपल वेस्टर्लीज फ्लो इन व्हाट लैटिट्यूड, सो दे विल आस्क कि वो 30 से 60 के बीच में जा रही हैं इस Oh, तरह से, okay, sir. ठीक है। Latin. Oh, okay, sir. और दिव्या? सर ह्यूमिड में तो वो वाटर रहता है ना एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट, लेकिन हमको क्यों लाइक इट फील्स मोर हॉटर इन ह्यूमिडिटी नहीं हॉटर नहीं रहता लाइक हाँ हाँ, होता क्या है कि ह्यूमिडिटी में वाटर रहता है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, बिकॉज देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, मतलब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, तो ओवरऑल वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी ऐसे क्रिएट कर देता है कि मतलब यू विल फील डेफिनेटली तुम्हें ओवरऑल देखो, हमारे लिए फॉर अस व्हाट इज गुड, ड्राई विंड इज गुड। जो ड्राई विंड है वो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। ड्राई विंड का मतलब क्या होता है कि जब एयर ड्राई है तो उस टाइम आप अच्छे से ब्रीथ कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। अगर उसमें ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी से और ज़्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, तो ओवरऑल वो चिपचिपापन आ जाता है उसमें। जैसे आप कूलर चलाते हो घर पर, कूलर देखा होगा आपने, है ना, तो कूलर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को और बढ़ा देता है, पर एसी क्या करती है, ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो वो होता है ऐसे, उसमें ठंडकपन नहीं रहती है, क्योंकि पता है ठंडकपन इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसमें मतलब जितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं ह्यूमिडिटी में, तो वो इतने सारे नहीं हैं कि वो आपको ठंडकपन पहुंचाएं, पर इतने तो हैं एटलीस्ट कि वो कहीं ना कहीं वो एयर में मॉइस्टपन लेके आते हैं, नमी ले आ जाती है वो, ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है। और ओके सर। धर्मित? धर्मित, आपका कोई क्वेश्चन? सर पेरिजी का भी ये मंथ होता है सर? हाँ, पेरिजी का होता है, पेरिजी और अपोजी मैंने बताया ना, जैसे पेरिजी का देखो ऐसा क्या, ओवरऑल जो उसकी साइकिल होती है मून की, वो तो 30 दिन की होती है, 30 डेज की होती है ना। सो 15 डेज, एट द 15 डेज देल बी पेरिजी, और उसके बाद 15 डेज में अपोजी आ जाएगा, तो उसका कोई विशेष मंथ नहीं है। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट इज द पेरिजी एंड अपोजी, तो देल यू नीड टू स्टेट कि पेरिजी मतलब पास में है, तो दिस इज द कंडीशन वेयर द अर्थ इज क्लोज टू द मून, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट अपोजी मतलब दूर हो गया। इन द सेम वे द मंथ कुड बी आस्क्ड इन द टर्म्स ऑफ द सन, इवन यूपीएससी का पीवाईक्यू है देयर वेयर दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द सिचुएशन और व्हाट इज द मंथ वेयर द सन इज क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द पेरीहीलियन, और एपीहीलियन दूर रहेगा, तो वो पेरीहीलियन कब आएगा, तो पेरीहीलियन वो बोल दिया कि वो जुलाई में आएगा कि जनवरी में आएगा। द डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 21 ऑफ जैन होता है, 21 ऑफ जुलाई होता है आई थिंक, और वो 3 उधर होता है 3 जनवरी नियर अबाउट, चेक कर लोगे उसको, लेकिन ठीक है। और कोई डाउट? रिया? नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं, सीसेट क्लास तब तक आप कंप्लीट कर लीजिए, और कोई डाउट होगा तो उसको लेके आना, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड डू रिवीजन प्रॉपरली, है ना, डू द रिवीजन प्रॉपरली, और सैटरडे को विल हैव आवर करेंट अफेयर सेशन, ठीक है, ओके। Okay sir, thank Okay, you sir. thank you for the wonderful class. I'll see you in very next episode of the geography. Till then, just take care. Goodbye. Keep smiling, keep subscribing, and keep make yourself healthy. Okay, thank you. This is Mohit signing off. Jai Hind, Jai Bharat.